To start our first session, and our prestigious resource person, Mr. Mohammad Zahid Mia, is here with us. He is currently working as a deputy director training at DPI colleges. He is an excellent teacher, trainer, researcher, and he has excellent knowledge about PIDA rules, conduct rules, recruitment policy, contract appointment policy, post-retirement benefit, leave rules. So over to you, sir. You can start the session. जी, thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear participants, my dear colleagues. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि you are getting very good training. Thank you very much for this particular session wherein we'll be talking about recruitment policy, contract appointment policy, and post-retirement benefits. That means we are going to have 3 in 1 in this session. So let's move towards the slide, please. जी काइंडली जरा कंफर्म कर दीजिए कि ये स्लाइड विजिबल है, आवाज ओके है? Yes sir, everything is okay. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. और स्लाइड नजर आ रही है जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो वेलकम टू यू ऑल टू दिस वेरी prestigious learning platform provided by Punjab Higher Education Commission. For that we are grateful to the worthy chairman, Punjab Higher Education Commission, all the team that is getting these sessions conducted. So we are really thankful to them that they are training our worthy colleagues. सारे colleagues से request है कि please अपने mics off कर दीजिए. Mics off कर दीजिए. Anyone from PHE side is present here and listening to me, kindly let all the participants turn off their mics. सर अगर आप कहते तो इनको मैं कंप्लीटली म्यूट कर देता हूं एट द एंड, अगर आप क्वेश्चन आंसर सेशन करना चाह रहे हैं. म्यूट कर दें, इनको म्यूट कर दें आप. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is about myself. Currently I am working as Deputy Director Trainings at DPI office. I've got the degree of MA English Literature, got Presidential Gold Medal from President of Pakistan while being the student of FC College, got MPhil degree in English Literature, currently pursuing PhD in English Linguistics. I've also served on these portfolios like remain Director Colleges, Lahore Division, Director Budget and Planning, DPI Office, Director Administration, DPI Colleges, remained Deputy Director for almost 7 years at Headquarter Lahore Division. Then also served as Deputy Director, Qusur District. This is my cell number and my email is also over here for any kind of further assistance after the session, please. हम स्टार्ट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ऑनरेबल कोलीग्स जो इस वक्त ग्रेड 18 में हैं, जब आप 19 में जाएंगे और आपकी सीनियरिटी बनेगी तो उसमें लिखा होगा सीनियरिटी ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर / प्रिंसिपल्स. तो इसका मतलब है कि 19 में जाके आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्लॉट के भी हकदार हैं. गो के 18 में भी लगे हुए हैं दोस्त, 17 में भी लगे हुए हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पोस्ट एंड द सब्सटेंटिव पोस्ट. लेकिन जो हकीकी चीज़ है वो जब आप 19 में जाते हैं तो फिर आप एक्चुअल पोस्ट पे एक्चुअल प्रिंसिपल लगते हैं. तो वहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देखने में आती हैं, सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें काइंडली आपसे शेयर कर दूं जिनको आपने जहन में रखना है. वो ये है, नंबर 1 तो कभी भी किसी कागज़ को जब आपको कहा जाए कि दस्तखत करें तो आपने उस वक्त तक दस्तखत नहीं करने जब तक वो बंदा जो कागज़ लेके आया वो आपको मुतमिन ना कर दे कि आपके पास कौन सी वो अथॉरिटी है अंडर रूल जिसके तहत आप साइन कर सकते हैं. तो आप साइन कीजिए. नंबर 2, क्योंकि ज़ाहिर है आपने प्रिंसिपल बनना है, कुछ ऑलरेडी प्रिंसिपल के पोस्ट पे काम भी कर रहे हैं, कुछ दोस्त डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे भी काम कर रहे हैं. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ. स्लाइड रीडिंग बहुत थोड़ी होगी लेकिन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये सारा जो लिटरेचर है ये ऑनलाइन पड़ा हुआ है. दिस इज़ जस्ट 1 click away. You can click the button and you can get whatever literature you wanna get about service matters of Punjab government. तो असल चीज़ें समझने की, असल चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की. आप माशाल्लाह सारे ही ब्रिलियंट लोग हैं. नेक ब्रेकिंग कंपटीशन से पीपीएससी से होके आप आए हैं. आपसे ज़्यादा कौन ज़हीन हो सकते हैं. तो आपको सिर्फ इशारों कनायों की ज़रूरत है, आप इंशाल्लाह चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाएंगे.
ठीक हो गया। पहली बात, कोई दस्तखत कराने आए तो उसे पूछें कौन सा वो रूल है, कौन सा कानून है, रेगुलेशन है, एक्ट है जिसके तहत मैं ये साइन कर सकता हूँ, मुझे ये अथॉरिटी गवर्नमेंट ने दी है, जरूर करें दस्तखत। दूसरे नंबर पे किसी चीज को पढ़े बगैर आपने साइन नहीं करना। जब तक चीज को पढ़ ना लें, कॉन्टेंट्स को समझ ना लें, उसके रूल को समझ ना लें, उसकी पॉलिसी आपके जहन में ना आ जाए, आप उसको कंसल्ट ना कर लें, बगैर पढ़े किसी चीज को दस्तखत मत करें। कोई भी आके कहे यार मैंने लिखा कर दो जी, आपको क्या पता उसमें क्या उन्होंने लिखा हुआ है। इसलिए आप कभी भी इस मामले में आपने ट्रस्ट सिर्फ अपनी आंखों पे रखना है कि मैंने इसको पढ़ लिया फिर आपने साइन करना। तीसरी बात, जब कभी आप ऑफिस से निकल रहे हो, जल्दी में हो, क्लर्क भागे भागे आते हैं, टीचर्स भागे भागे आते हैं, अगर आप एज प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहे हैं, सर ये आपके साइन एक रह गए थे, आपको क्या पता वो कौन से साइन है, क्यों करवाने आया है, आप कर भी सकते हैं कि नहीं, आपकी अथॉरिटी है कि नहीं, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना। एक और बड़ी अहम बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, पॉलिसीज 3 है, इसलिए हमने ये ज़हन में रखना है कि अभी जो मैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात करूंगा, मैं साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट की भी बात करूंगा, और जहां कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट चीज़ें आएंगी वो मैं आगे जाके आपको डिफरेंटली बता दूंगा। बाकी सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में, in both these modes they are absolutely similar, so there isn't any difference between these two. That means when I'm going to talk about the recruitment policy, simultaneously I'm talking about the contract appointment policy, except those important and unique points which are specifically for the contract appointment policy, तो वो मैं एंड पे जाके आप ऑनरेबल कोलीग्स के साथ शेयर कर दूंगा। अगली बात यह है कि those officers who know the rules, they rule their offices। वो अफसरान जिनको कवानीन का पता होता है वो अपने अपने दफातर पे हुकूमत करते हैं। उसकी वजह, जब आपको कवानीन का पता होगा तो कोई डरता अंदर नहीं आता गलत काम कराने के लिए कि सर को तो सारा ही पता है। जब सर को पता ही नहीं होगा तो वो बाहर मशहूर हो जाता, सर को कोई पता नहीं, जो मर्जी चीज ला जाओ साइन कर देंगे। So this is very important for you, dear colleagues. Being my colleague, definitely I would like you people to be very much sharp with reference to the service matter. तो सर्विस मैटर के हवाले से आपको बड़ा शार्प होना पड़ेगा, वरना लोग इतने तेज हैं कि खा जाते हैं, ठीक है। और फिर बंदा एंटी करप्शन भुगत रहा होता है, बंदा नैब भुगत रहा होता है, बंदा पीडा भुगत रहा होता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए कानून का आना बहुत जरूरी है। रिक्रूटमेंट की जब हम बात करते हैं, और ज़हन में रखें रिक्रूटमेंट के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर दोनों की बात कर रहा हूँ। रिक्रूटमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये बुनियादी तौर पे ऐसा प्रोसेस है कि जब हम किसी खास नौकरी के लिए किसी खास बंदे को उन काबिलियतों के साथ, उन टेक्निकलिटीज के साथ सिलेक्ट करते हैं, उसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। अब नॉर्मली ये समझते हैं कि शायद एक बंदा आया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, उसने ज्वाइन कर लिया, ये रिक्रूटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट है। अब एक चीज ध्यान में रखें, ये जो हमारी भर्ती होती है या हम भर्ती करते हैं, आप भी भर्ती हुए थे, मैं भी भर्ती हुआ था, अक्सर हमसे एक सवाल किया जाता है कि आप बताएं अंडर विच रूल यू आर अपॉइंटेड, आपकी किस कानून के तहत भर्ती हुई थी। अब यकीन करें प्रिंसिपल्स के इंटरव्यूज के लिए दोस्त अहबाब आते हैं, मोस्टली नहीं पता होता, जो कि बायस शर्मिंदगी होती है हमारे लिए, क्योंकि फिर वो बातें करते हैं, देखें जी इनको तो इस चीज का भी पता नहीं है कि ये किस कानून के तहत भर्ती हुए थे। तो आपने याद रखना सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974, इसके तहत हमारी भर्तियां होती हैं, और इसके अंडर कुछ रूल्स बने हुए हैं 1974 रूल्स, 90 सिविल सर्वेंट रूल्स 1974, जिसके तहत हमारी सारी सर्विस रेगुलेट होती है। यानी सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 और सिविल सर्विस रूल्स 1974, ये वो दो चीजें हैं जिनके जरिए हम भर्ती होते हैं, हमारी जनाब सर्विस चलती है, और सर्विस के जितने मैटर डे 1 से लेके आपकी और किसी भी और की या दोस्त अहबाब की सर्विस के इख्तिताम तक, और जाहिर है जो भी लिविंग थिंग है, कुल्लू नफ्सुन ज़ायक़तु मौत, जो पैदा हुआ है उसकी डेथ भी होनी है, डेथ तक ये जो एक्ट 1974 और रूल्स 1974 है, इन्होंने हमें रेगुलेट करना है। इन्हीं की मदद से सीनियरिटी मिलती है, इन्हीं की मदद से प्रमोशन मिलती है, इन्हीं के अंदर ही डिसिप्लिनरी रूल्स हैं जिसके तहत पीडा बना हुआ है, ठीक है। इसी के तहत हमारा लियन रिटेन होता है, इसी के तहत प्रोबेशनरी पीरियड होता है, इसी के तहत अपॉइंटमेंट होती है, इसी के तहत आगे मेडिकल होता है। सब कुछ जो है वो आप समझ लें सर्विस की जो मदर लॉ है वो सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 और उसके तहत बनने वाले रूल्स।
अब आप कहेंगे जी अगर एक्ट बना था 1974 तो रूल्स बनाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सा मैं अपने ऑनरेबल कोलीग्स को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कोई भी जब एक्ट बनता है ना तो मोस्टली वो 2 4 5 वर्गों का होता है, उसके कोई 25 26 30 35 उसके प्रोविजंस होते हैं। लेकिन इतने 4 5 पेजेस के अंदर या 2 2 लाइनों की प्रोविजंस के अंदर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन होती हैं, बहुत सारी लीगल इंटरप्रिटेशन होती हैं जो रह जाती हैं, जो नहीं होती। तो उसी एक्ट के अंदर एक वहां पे जो है वो शिक डाल दी जाती है, द गवर्नमेंट में make rules under the act which must not be inconsistent with the provisions of this act। कि गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत रूल्स भी बना सकती है that may be prescribed। may be prescribed का क्या मतलब होता है? अब रूल्स की जरूरत क्यों पड़ती है मैं आपको ये बता दूं। एक्ट जब बनता है तो उसमें लीगल गैप्स रह जाते हैं। लीगल गैप्स क्या है? मसलन एक्ट में लिखा हुआ है द सीनियरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज या सिविल सर्वेंट शैल बी डिटरमिन्ड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब यहाँ आके वो प्रोविजन खत्म हो गई 1974 के एक्ट के अंदर। अब मे बी प्रेस्क्राइब्ड इसका क्या मतलब है? वो कहाँ प्रेस्क्राइब हुए हैं? वो प्रेस्क्राइब्ड करने पड़ते हैं। यानी जहां लिखा होता ना मे बी प्रेस्क्राइब्ड, समझ लें ये वो गैप है जिसको फिल करने के लिए रेगुलेशंस बनाए जाते हैं या रूल्स बनाए जाते हैं। ये आप ज़हन में रख लीजिए, ठीक है। चूंकि एक्ट 1974 में सारी चीजें क्लैरिटी के साथ मौजूद नहीं है, सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, सारी चीजों की इंटरप्रिटेशन मौजूद नहीं है, तो लेजिस्लेचर का ये नुक्ता होता है, उसकी इंटेंट होती है कि जनाब इसके तहत जब रूल्स बनेंगे तो उसमें क्लैरिफिकेशन होगी, इंटरप्रिटेशन होगी, उसमें हर चीज को वजाहत के साथ बयान कर दिया जाएगा और चीजों को समझ लिया जाए। तो रिक्रूटमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं है बंदे को ऑर्डर दिया उसने ज्वाइन कर लिया। रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस मैं आगे आपको बताता हूं। रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि आप एक्टिवली ऐसे बंदे के ऐसे उम्मीदवारान के मुतलाशी होते हैं जो आपकी मखसूस नशिस्तों के अगेंस्ट आप भर्ती करेंगे। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये भर्तियां, ये मैं इनिशियल रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं, और याद रखें रिक्रूटमेंट का दूसरा नाम अपॉइंटमेंट भी है, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है वो इनिशियल भी होती है और दूसरे मोड के जरिए भी होती है। वो क्या है? पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 है, इसका चैप्टर 1 है, प्रिलिमिनरी सेक्शन नंबर 2 है। डेफिनेशंस के अंदर लिखा हुआ है कि इनिशियल रिक्रूटमेंट मींस अपॉइंटमेंट मेड अदरवाइज देन बाय प्रमोशन एंड ट्रांसफर। तो इसका मतलब अपॉइंटमेंट इनिशियल भी होती है, अपॉइंटमेंट वाया प्रमोशन भी होती है, और अपॉइंटमेंट वाया ट्रांसफर भी होती है। वाया प्रमोशन कैसे? आप ग्रेड 17, आप अभी आप ग्रेड 18 में, माशाल्लाह 19 में हो जाएंगे, तो दैट वुड बी अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन। ठीक हो गया। इसीलिए आपको पता है कि जब आप प्रमोट होते हैं तो पहला साल आपका प्रोबेशन का होता है, लेकिन जब इनिशियल अपॉइंटमेंट पे आते हैं तो 2 साल प्रोबेशन के होते हैं। ये दोनों में फर्क है। तो इसमें मतलब दोनों अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन इनिशियल रिक्रूटमेंट जो है उसके मोड में प्रमोशन या ट्रांसफर नहीं आती, वो सिर्फ डायरेक्ट भर्ती आती है जब आप इश्तिहार देते हैं। और ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब ट्रांसफर भी एक किस्म की अपॉइंटमेंट होती है। आप कहें कैसे? जब जैसे आप में बहुत सारे कोलीग्स जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन अब वो प्रिंसिपल लगे हुए हैं, वो बाय ट्रांसफर वहां पे आए थे। क्योंकि जब गवर्नमेंट HED ऑर्डर निकालती है तो वो ये निकालती है मिस्टर सो एंड सो assistant professor of so and so subject working at government graduate college Faisalabad is hereby transferred and posted as deputy director colleges as principal। तो ये भी अपॉइंटमेंट होती है, तो लेकिन ये थ्रू ट्रांसफर होती है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो इनिशियल रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, इनिशियल अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, जो ओपन मेरिट या कोटेस के अगेंस्ट हम भर्ती करते हैं एडवर्टीजमेंट देके। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब ये रूल भी आपको पता चल गया। इंपॉर्टेंट ये इफेक्टिव रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि आप बेहतरीन बंदे को बेहतरीन जगह पे लगाएं और ईमानदारी से सिलेक्ट करें, मेरिट पे सिलेक्ट करें, ट्रांसपेरेंसी से करें। डेफिनेटली जो बंदे सिलेक्ट होंगे वो भी दाद देंगे कि यार क्या बात है, हमने तो सुना था नौकरियां पैसों के बगैर नहीं मिलती, लेकिन क्या कमाल अदारा है यार कि वहां पे उस बंदे ने मेरिट पे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जैसा वहां पे बंदा भर्ती हो सकता है। लिहाजा ये क्रेडिबिलिटी होती है। तो इस तरह की इफेक्टिव रिक्रूटमेंट होती है जिसपे कोई उंगली ना उठे। अब आप कहेंगे जी यहाँ पे तो ये होता है, वहां पे वो होता है। देखें, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसका 100% इख्तियार होता है, वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करे। क्या आपको गन पॉइंट पे आपसे को भर्ती करवा सकता है अगर आप ना चाहें? आप कहें जी मैं रिजाइन करता हूं, मैं नहीं करता ये इलीगल भर्ती, कल को नैब को किसने भुगतना है, एंटी करप्शन को किसने भुगतना है, पीडा लग जाएगा, मैं क्या करूंगा? कोई फिर साथ नहीं खड़ा होता जिसने आपसे गलत काम करवाया होता है, वो साइड पे हो जाता है। फिर लोग पता क्या कहते हैं, परसेप्शन क्या बन जाती है,
पैसे लिए होंगे इसने, वरना इसको क्या जरूरत पड़ी हुई थी इस तरह से भर्ती करता है, इसने यकीनन पैसे लिए होंगे तो इस पे पीड़ा लगा। तो माय डियर, आपने अपने इख्तियार को कानून के मुताबिक इस्तेमाल करना है। आपके पास इख्तियार है तो 100 दफा करें, नहीं है तो मत करें। किसी के गलत कहने पे कोई बाद में साथ खड़ा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप डिप्टी डायरेक्टर लगे हुए हैं, आप प्रिंसिपल लगे हुए हैं, आप गैर कानूनी भर्ती नहीं करते, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आपको ट्रांसफर कर देंगे ना। तो आपको डिमोट तो नहीं कर सकते ना, ग्रेड तो आपका नीचे नहीं कर सकते ना, 18वें में जाके फिर लग जाएंगे। लेकिन गलत काम से बच जाएंगे, क्योंकि गलत काम होगा तो ना सिर्फ आपकी नौकरी दांव पे लगेगी, बल्कि आपकी पूरी फैमिली की लाइवलीहुड भी दांव पे लग जाएगी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाने के लिए मोरल करेज का होना बहुत जरूरी है, वरना एक बंदे की रिप्यूट बन जाती है कि फलाना बंदा तो बहुत करप्ट आदमी है। ठीक है, इसलिए इससे हमने बचना है, तो इफेक्टिव रिक्रूटमेंट हमने करनी है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो भर्ती है करता कौन है, ये करता है जी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और याद रखें ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी सेक्शन 6 के तहत, जो हमारा वही 1974 के रूल्स हैं और एक्ट है, उसके सेक्शन 6 के तहत अपॉइंटिंग अथॉरिटी लगती है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी का मतलब होता है मजाज अथॉरिटी, जो भर्ती कर सकती है, जो भर्ती कर सकती है, जो तकर्रुरी कर सकती है, उसे अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज भी क्लियर कर देता हूं कि इसके साथ एक टर्म यूज होती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब दोस्त है, बाप को प्रॉब्लम आती है कि यार ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में फर्क क्या है, तो मैं अपने दोस्तों को बताता हूं कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो बंदा भर्ती करे, जिसके पास ये इख्तियार हो अंडर सेक्शन 6 ऑफ सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974, जिस बंदे के पास इख्तियार है कि वो भर्ती करे, जिसको वो भर्ती करेगा उसी बंदे पे जब वो कार्रवाई करेगा पीड़ा के तहत, तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी चेंज हो जाएगी, उसका नाम फिर हो जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। याद रखें, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, भर्ती करने वाली अथॉरिटी, सिविल सर्वेंट रूल्स 1974 के सेक्शन 6 के तहत लगती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पीडा एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन F2 के तहत लगती है। ये याद रखना है। फर्क ये है, जो बंदा भर्ती करेगा, अब सवाल ये पैदा होता है कि किस ग्रेड को कौन भर्ती करेगा। ये मैं आगे जाके आपको सारा बताऊंगा कि किस ग्रेड को कौन भर्ती कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। याद रखें, जिस ग्रेड को भर्ती करने का इख्तियार जिस बंदे के पास होगा, उसी बंदे के पास इख्तियार होगा कि वो उसके ऊपर पीड़ा भी लगा सकता है। तो इसका मतलब जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा वही उसकी, जब पीड़ा लगेगा तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। इसको आपने भूलना नहीं है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको बताना। आप थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? जो बंदे को अपॉइंट करता है, रिक्रूट करता है, ठीक है, उसको रेगुलर बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसको प्रमोशन देता है, ठीक है, उस बंदे के सर्विस मैटर, उसकी पेंशन सैंक्शन करता है, ये भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही करती है। जितने सर्विस मैटर होते हैं जो उसको डील करता है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी करती है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैंने बता दी। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि किस ग्रेड की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है। क्या मतलब, किस ग्रेड के कैंडिडेट एम्प्लॉय को कौन भर्ती कर सकता है, और जो उस ग्रेड के बंदे को भर्ती करेगा उसी के पास इख्तियार होगा उसको उसके ऊपर पीड़ा लगाने का, वो फिर उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जाएगी। ग्रेड 19 से लेके ऊपर तक के जितने लोग हैं ना इस ग्रेड के, उन सब की अपॉइंटिंग अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर है। जाहिर है जब 19 और उसके ऊपर वाले बंदों पे पीड़ा लगेगा तो उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी चीफ मिनिस्टर। आप कहेंगे जी चीफ मिनिस्टर साहब के पास इतना टाइम कहाँ होता है? तो चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, इन तीन अफसरान के पास और पर्सनैलिटीज के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आगे डेलीगेट कर दें। किसी सेक्रेटरी को कहें कि आप मेरे भी यहाँ पे भर्ती करो, आप मेरे भी यहाँ पे इस पे पीड़ा लगाओ, तो ये तीन लोग हैं, इनके अलावा किसी को इख्तियार नहीं है कि कोई किसी के ऊपर किसी को भर्ती कर ले, किसी को जो है ना उसके ऊपर पीड़ा लगा दे, किसी और को अपना इख्तियार दे के। इसके नीचे किसी के पास इख्तियार नहीं है। जिसके पास जिस ग्रेड की अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वो ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, वो ही उसको भर्ती कर सकता है, वो ही उसको शोकाज कर सकता है, वो ही उसकी इंक्वायरी करवा सकता है, वो ही उसके ऊपर पीड़ा लगा सकता है। इससे हटके अगर कोई बंदा दस्तखत करेगा या उसके बिहाफ पे कोई इश्तहार देगा तो वो वायलेशन ऑफ रूल्स होगा। ग्रेड 17 से 18 तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होते हैं। जाहिर है वही इस वक्त हम ग्रेड 18 में जो जो लोग भी हैं उन सब की जो
अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी साहब हैं, और इन सब की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो भी सेक्रेटरी साहब हैं। इन दोनों को भर्ती भी वही करते हैं, इन दोनों के ऊपर पीड़ा लगाने का इख्तियार भी उनके पास है। ग्रेड 1 से 16 तक फिर आगे मजीद इख्तियार दिया हुआ है अंडर सेक्शन 6 के। वो मैं बताता हूँ किसको क्या इख्तियार मिला हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, ग्रेड 1 से 3 तक जो भर्ती करने का इख्तियार है वो प्रिंसिपल साहब के पास होता है। नॉर्मली भर्ती सिर्फ पहले ग्रेड की होती है। अब मैं आपको यहाँ एक और चीज बता दूं, अक्सर लोग कहते हैं जी क्लास 4 के लोग, यानी ग्रेड 1 वालों को, ये जो माली हैं, नायब कासद हैं, बेलदार हैं, चौकीदार हैं, ठीक है, लैब अटेंडेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं क्लास 4। माय डियर कोलीग्स, आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये क्लास 4 गस्टर्ड ऑफिसर, नॉन गस्टर्ड ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, क्लास 4 ऑफिसर, खुदारा ये 1974 के 23 बल्कि 3 जुलाई 1974 में ये क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। आप सिर्फ 2 टर्म्स चलती हैं, याद रखें। ग्रेड 1 से 15 तक सारे ऑफिशियल्स हैं और ग्रेड 16 से 22 तक सारे ऑफिसर्स हैं। कोई क्लास 4 नहीं है, कोई गजेटेड नहीं है, कोई नॉन गजेटेड नहीं है। लिहाजा जब बीइंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपने भर्ती के लिए इश्तहार देना है तो क्लास 4 का लफ्ज आपने यूज नहीं करना, क्योंकि ये नहीं है, ठीक है जी, ये बिल्कुल नहीं है, इसका आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं आपको बताऊं कि भर्ती कौन कर सकता है। प्रिंसिपल की भी 3 कैटेगरीज होती हैं ऑनरेबल कॉलीग्स, मैं आपको बता दूं। एक रेगुलर प्रिंसिपल होता है। रेगुलर प्रिंसिपल वो है जो सब्सटेंटिव पोस्ट के ग्रेड के मुताबिक आए। सब्सटेंटिव पोस्ट क्या है? एक पोस्ट एसएनई के जरिए शेड्यूल फॉर न्यू एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं, नई पोस्ट जब दी जाती है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका नोमेनक्लेचर भी बताता है, उसका ग्रेड भी बताता है कि ये ग्रेड 19 की पोस्ट है। अब अगर ग्रेड 19 के ऊपर ग्रेड 19 का प्रिंसिपल लगेगा तो ये प्योरली रेगुलर प्रिंसिपल है। इसके बाद दूसरे नंबर पे प्रिंसिपल आते हैं जिन्हें हम ओपीएस प्रिंसिपल कहते हैं, ओन पे स्केल। ओन पे स्केल का मतलब है जिनका सब्सटेंटिव स्केल तो नहीं होता लेकिन ग्रेड छोटा होता है, लेकिन अथॉरिटी उनको लगा सकती है। यानी 19वें ग्रेड की पोस्ट पे 18 के बंदे को प्रिंसिपल लगा देना, ये ओपीएस है। ये भी रेगुलर प्रिंसिपल की कैटेगरी में आता है। तीसरे नंबर पे आती है कैटेगरी, वो है डीडीओ की कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जो गवर्नमेंट के खाते से पैसे निकलवाता है और आगे जो ट्रू और लीगल क्लेमेंट होते हैं उनको बांट देता है, उसे हम डीडीओ ऑफिसर कहते हैं। आप फिर कहेंगे लो सर, अगर डीडीओ प्रिंसिपल भर्ती नहीं कर सकता तो वो कॉलेज कैसे चलाएगा? हमारे तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें पिछले 3-3 साल से 2-2 साल से डीडीओ प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, तो वो फिर कॉलेज कैसे चलाएंगे? उनके पास तो अमला ही नहीं होता। तो उसके लिए ऑनरेबल कोलीग्स को मैं बताऊंगा कि पंजाब गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स डेलीगेशन ऑफ पावर्स 2016 अपडेटेड, ठीक है, 2016 की डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, उसमें अफसरान की 4 कैटेगरी का जिक्र है। 4 कैटेगरी कौन सी वो मैं आपको बता दूं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। अब कैटेगरी 1 का क्या मतलब? कैटेगरी का मतलब ये है कि ये वो अफसरान है जिनके पास इतने पैसे खर्च करने की अथॉरिटी है, उसे कैटेगरी कहते हैं। अब हमारी कैटेगरी 1 के जो अफसर हैं, अगर आपने तफसील में देखना है कैटेगरी 1 के अफसर कौन कौन है, उनके पास कितने पैसे, कितने चीज़ें, कितने काम करने का इख्तियार है, तो ये आप ऑनलाइन गूगल पे जाएं, वहाँ पे जाके लिखें फाइनेंशियल डेलीगेशन ऑफ पावर 2016 पंजाब गवर्नमेंट, तो जनाब पूरा डॉक्यूमेंट निकल आएगा। मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। अब ये जो कैटेगरी 1 का बंदा होता है ना, ये हमारे सेक्रेटरी साहब कैटेगरी 1 के हैं, हमारे डीपीआई साहब कैटेगरी 1 के हैं, हमारे डायरेक्टर कॉलेजेस कैटेगरी 1 के हैं, हमारे ये जो ऑटोनमस कॉलेजेस में प्रिंसिपल लगे होते हैं ये कैटेगरी 1 के होते हैं। अब आ जाए हमारे जो एसोसिएट कॉलेजेस हैं, ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, इनके प्रिंसिपल कैटेगरी 2 के अफसर होते हैं, याद रखें, क्योंकि ये अक्सर प्रिंसिपल्स के इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आप बताएं, अच्छा आपने प्रिंसिपल लगना है? हाँ जी मैं प्रिंसिपल लगना है। किस कॉलेज में? जी ग्रेजुएट कॉलेज फलाम है। अच्छा आप बताएं, जब आप प्रिंसिपल लगेंगे तो प्रिंसिपल किस कैटेगरी का अफसर होता है? और यकीन करें आगे अल्हम्दुलिल्लाह साइलेंस होती है। अब साइलेंस नहीं होगी, अब चूंकि आपको ट्रेन किया जा रहा है तो आप फौरन जवाब देंगे कि जनाब मैं कैटेगरी 2 का अफसर हूँ, अगर आप मुझे वहां पे लगा देंगे। क्या मतलब कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मेरी को लिमिट्स मुतय्यन की हैं कैटेगरी 2 के अफसर की, कि मैं ये खर्चे कर सकता हूँ, इतने इतने खर्चे, इतने रुपयों से लेके इतने रुपयों तक का मैं खर्चा कर सकता हूँ, इसमें 2 कैटेगरी का ऑफिसर हूँ। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं वो कैटेगरी 3 के अफसर होते हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो डीडीओज भी होते हैं, ठीक है। अब कैटेगरी 4 का होता है जी डीडीओ प्रिंसिपल, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। और याद रखें, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब बीइंग कैटेगरी 4 ऑफिसर, अ डीडीओ ऑफिसर हैज 100% अथॉरिटी टू
इंडक्ट एम्प्लॉयज ऑन डेली वेजेस। डेली वेजेस पे 100% उसके पास इख्तियार है, लेकिन HED ने उसके साथ एक और चीज को टैग कर दिया है कि वो कॉलेज काउंसिल से भी उसकी अप्रूवल लेगा। तो 100% उसके पास इख्तियार है, वो टीचर्स भी रख सकता है, विजिटिंग टीचर भी रख सकता है, और जनाब वो फंडों के ऊपर मुलाजमीन भी रख सकता है, और कॉलेज काउंसिल से उसको उसकी इजाज़त लेनी होती है। 100% उसके पास इख्तियार मौजूद है। और फिर कॉलेज काउंसिल के जो स्टैंडर्ड SOPs बने हुए उसके सेक्शन 13, 14, 15 के मुताबिक भी प्रिंसिपल और कॉलेज काउंसिल के पास 100% इख्तियार है कि वो लोगों को फंडों पे तो रख सकते हैं, लेकिन DDO बंदा जो है ना वो पीडा लगा सकता है, वो प्रोब जरूर लगा सकता है, वो रेगुलर भर्ती नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती नहीं कर सकता। फंडों पे 100% टीचिंग नॉन टीचिंग वो भर्ती कर सकता है। अब आगे आ जाए जी, इसका मतलब ग्रेड 1 से लेके 3 तक का अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? प्रिंसिपल, रेगुलर प्रिंसिपल, OPS प्रिंसिपल, DDO नहीं। ये इनको भर्ती भी कर सकता है और ये ही इनके ऊपर पीड़ा भी लगा सकता है। इसके अलावा अगर ये कोई कार्रवाई करेगा तो वो गैर कानूनी होगी। आगे आ जाएं, ग्रेड 4 से लेके 15 तक डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में बैठे हुए हैं वो ग्रेड 4 का ड्राइवर होता है, और 15 तक आगे जो पर्सनल अपग्रेडेशन चलती है, क्योंकि ग्रेड 14 का जो है ना वो सीनियर क्लर्क होता है, वहां तक ये सारी की सारी, चूंकि सीनियर क्लर्क वैसे थ्रू प्रमोशन आते हैं, इनिशियल जो है ना वो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट जूनियर क्लर्क्स की होती है, वो डिप्टी डायरेक्टर ही उनको भर्ती करेगा, डिप्टी डायरेक्टर ही उनके ऊपर पीड़ा लगाएगा। अब आप कहेंगे जी कॉलेज में हमारे पास क्लर्क है, वो तो हमारी बात नहीं सुनता। आप उसकी प्रोब कराएं, एक्सप्लेनेशन करें, वार्निंग दें, काउंसलिंग करें, फाइल उसकी भरें, और भर के उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिप्टी डायरेक्टर साहब को भेज दें, जनाब ये बंदा ख्वार कर रहा है, तंग कर रहा है, ये इसके खिलाफ सारा मुआद है, इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो चूंकि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो उसके खिलाफ पीड़ा लगाएगा। आप पीड़ा नहीं लगा सकते जूनियर, यानी अपने इख्तियार से बाहर नहीं जा सकते। सर्विस हमेशा याद रखें, सर्विस हमेशा कवानीन पे चलती है और कानून आपकी हदें मुतय्यन करता है। आपने अपनी हद को नहीं तोड़ना, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। पीड़ा क्या, एंटी करप्शन क्या, नैब क्या, आपके पास से भी कोई चीज़ नहीं फटक सकती अल्लाह के फजलो करम से, अगर आप कानून की पाबंदियों में रह के काम करते हैं। ग्रेड 16 से लेकर 18 तक सेक्रेटरी साहब हैं अपॉइंटिंग और वही कॉम्पिटेंट। 19 से 22 तक चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वही अपॉइंटिंग और वही कॉम्पिटेंट। अब ये कॉमर्स स्ट्रीम के है, इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे ऑनरेबल कोलीग्स में कोई भी कॉमर्स कॉलेज से नहीं है, ये सारे जनरल कार्डर के लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। तो आप अपने नॉलेज के लिए अगर आप डिप्टी डायरेक्टर हैं तो ये पढ़ लीजिएगा कि कॉमर्स के किस बंदे का कौन अपॉइंटिंग और कौन उसकी अब वो है दूसरी अथॉरिटी है। ठीक है, अब मैं आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताने लगा हूं, और ये टोटल प्रोसेस है जो मैं आपको जल्दी से बता दूंगा कि भर्ती का अमल क्या है। भर्ती का अमल किसको कहते हैं? आपकी सीटें कैलकुलेट करने से लेके बंदे की ज्वाइनिंग तक ये सारे का सारा प्रोसेस रिक्रूटमेंट कहलाता है। सबसे पहले क्या होता है, आप सीटों की कैलकुलेशन करते हैं, जितनी खाली सीटें हैं उसकी कैलकुलेशन। अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के अंदर कॉलेज के अंदर जितनी खाली सीटें हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी सीटें खाली हैं। अगर आप डायरेक्टर हैं और आपका इख्तियार है तो पूरी डिवीजन में आप देखते हैं, वगैरह वगैरह। आगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कोटास फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट एज पर कार्डर। देखें ये दो चीजें समझ लें, दो चीजों का यहाँ पे जिक्र हुआ, कोटा और कार्डर। ये दो चीजें क्या होती हैं? देखें, कोटा जो है ना, कोटा होता है एक परसेंटेज जो मखसूस रखी होती है, क्योंकि 100 सीटें हैं ना आपके पास, 100 सीटों के अंदर कुछ सीटें मखसूस होंगी डिसेबल के लिए, कुछ विमेन के लिए, कुछ जनाब आपके माइनॉरिटी के लिए, कुछ इन सर्विस के लिए। वो मैं आगे जाके आपको सारी डिटेल बताता हूँ, और वो कैसे कोटा निकाला जाता है वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग भर्ती में यहाँ फंसते हैं, कोटा गलत निकाल देते हैं, पीड़ा लग जाता है। अब कोटा ये होता है, कोटे के रूल्स होते हैं, 1973 में ये रूल्स बने थे और बाकायदा उसमें बताया गया कि आपने कोटास कैसे निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं। कार्डर का मतलब होता है एक बेसिक यूनिट, एक ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है वो बंदे जो एक ही सर्विस रूल्स और एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन के तहत किसी यूनिट के अंदर मौजूद होते हैं, वो कार्डर होता है। और उसकी टोटल स्ट्रेंथ जो होती है ना, उसके ऊपर कोटास डिटरमन होते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जब आपने सीटें निकाल ली, टोटल कितनी खाली पड़ी हैं, खाली सीटों का आपने कोटा निकाल लिया, ये डिसेबल है, ये वुमेन का कोटा है, ये माइनॉरिटी का कोटा है, ये इन सर्विस 20% कोटा है। ये सारी बातें हो रही हैं जब हम इनिशियल रिक्रूटमेंट करते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बहुत लाजमी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, हमारे रूल्स 1974 भी कहते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स 2004 भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट रूल्स 2004 भी कहते हैं कि आप कोई भर्ती जो है वो एडवर्टीजमेंट के बगैर नहीं करेंगे, वो एडहॉक है या वो फंडों पे है या वो कोई भी है। क्योंकि इसमें ये होता है कि वाइडर आप कह लें कि सर्कुलेशन होती है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, हर बंदे को मौका मिल जाता है। आप इश्तहार के लिए
अखबार के लिए इश्तहार बनाते हैं, टोटल सीटें बताते हैं, कोटे की सीटें बताते हैं। और याद रखें ये इश्तहार जो भर्ती के लिए सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी दे सकती है, और जो लोग अप्लाई करेंगे वो पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। आप पाबंदी नहीं लगा सकते कि जनाब आप हम तो मुल्तान के लिए भर्ती कर रहे हैं, सिर्फ मुल्तान के बंदे हैं। 15 दिन का आप टाइम देते हैं उसी अखबार के अंदर के जब अखबार छप जाए उससे आगे 15 दिन आप देते हैं कि एप्लीकेशन जमा कराएं। उसके अंदर ही आपने लिखा होता है कि टर्म एंड कंडीशन क्या है, उम्र कितनी होनी चाहिए। याद रखें उम्र हमेशा 18 साल से स्टार्ट होती है, आगे जितनी गवर्नमेंट ने एज फिक्स की वो सर्विस रूल्स के मुताबिक आपने देखना है। रिलैक्सेशन कितनी दी हुई है, फीमेल को रिलैक्सेशन कितनी है, डिसेबल को कितनी है, जनरल रिलैक्सेशन कितनी है, एक्सपीरियंस कितना आपने मांगा हुआ, क्वालिफिकेशन आपने क्या मांगी हुई है, ये सारी चीज़ें आपने इश्तहार के अंदर लिखनी होती है। फिर आपने इश्तहार में डेट भी देनी है, डे भी देना है, टाइम भी देना है कि एप्लीकेशन कहाँ जमा होंगी। फिर आपने एज रिलैक्सेशन का भी जिक्र करना है कि कितनी एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट के मुताबिक, कितनी स्पेशल खवातीन के लिए है, डिसेबल के लिए, जो भी गवर्नमेंट ने अलाउ की होगी वो रूल्स और नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे। और फिर उसी इश्तहार के अंदर आप लिखेंगे किस दिन, किस तारीख को, कितने किस टाइम पे रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होंगे, जो भी एप्लीकेबल है। ज़ाहिर अगर वन स्केल के बंदे की आप भर्ती कर रहे हैं तो ज़ाहिर उनका रिटन टेस्ट तो नहीं होता ना, उनका सिर्फ इंटरव्यू होता है। आप उनसे इंटरव्यू करते हैं और उनको रख लेते हैं। तो जो अगर जूनियर क्लर्क होगा तो रिटन टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर होगा तो रिटन टेस्ट होगा, असिस्टेंट होगा तो रिटन टेस्ट होगा। आगे चलें, फिर आप क्या करेंगे, इंटरव्यू कमेटी नोटिफाई कराएंगे। कैसे कराएंगे, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आप अपने डिप्टी साहब को लिखेंगे, डिप्टी डायरेक्टर साहब को लिखेगा, डायरेक्टर आगे 2 अथॉरिटी को लिखेगा, एक डीपीआई साहब को, एक सेक्रेटरी साहब को, क्योंकि एक नुमाइंदा असिस्टेंट डायरेक्टर डीपीआई ऑफिस से होता है, एक नुमाइंदा सेक्रेटेरिएट से होता है, एसओ या डेप्टी सेक्रेटरी वट एवर इज अवेलेबल ओवर देयर एज पर द डिजायर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जनाब वो नॉमिनेट होके आते हैं कि फलां कॉलेज में जो भर्ती हो रही है एचईडी की तरफ से ये नुमाइंदा होगा, डीपीआई की तरफ से ये नुमाइंदा होगा, और एक आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे। ये 3 लोगों की कमेटी होती है जिसे रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन कमेटी कहते हैं। ये ग्रेड 1 से लेके 15 तक के लोगों को भर्ती भी करती है, उनकी प्रमोशन भी करती है, पर्सनल अपग्रेडेशन भी उनको देती है। तो ये कमेटी आपने फिर नॉमिनेट करानी है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लें, फिर आप इंजॉय करेंगे भर्ती करने को भी और सारे मामले को भी। उसके बाद क्या होगा, जब आपने कमेटी नॉमिनेट करा ली फिर आप 2 और कमेटियां बनाएंगे। एक कमेटी आप बनाएंगे स्क्रूटनी कमेटी, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, एलिजिबिलिटी चेक कर, जब एप्लीकेशंस आ जाएंगी ना आप स्क्रूटनी कमेटी बनाएंगे, वो स्क्रूटनाइज करेगी, वो डॉक्यूमेंट्स देखेगी, एलिजिबिलिटी चेक करेगी, एज चेक करेगी। जो लोग आपके इश्तहार के मुताबिक अंडर रूल होंगे उनकी एप्लीकेशंस अलहदा हो जाएंगी, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगी। फिर आप एक और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो कि टेस्ट लेने के लिए होगी। मसलन टेस्ट किसका लेते हैं आप, अगर असिस्टेंट की भर्ती है उसका टेस्ट है, जूनियर क्लर्क रखना है उसकी टाइपिंग टेस्ट है, अगर आपने स्टेनोग्राफर रखना है तो शॉर्ट हैंड टेस्ट है, अगर आपने ड्राइवर रखना है तो ड्राइविंग का टेस्ट है, उसके लिए आपने नॉमिनेशन लेनी होती है ट्रैफिक पुलिस से, क्योंकि वही लोग होते हैं ना, वो आएंगे वो टेस्ट लेंगे, लेकिन कमेटी वहां पे मौजूद होगी। फिर आप क्या करेंगे कि जो इनिशियली सक्सेसफुल स्क्रीनिंग होने के बाद लोग निकलेंगे ना, आप बाहर लगा दें कि जनाब ये एलिजिबल कैंडिडेट हैं, ये जनाब इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुए हैं, इनका जनाब टेस्ट होगा। फिर ईच स्टेप जो है ना ये प्रॉपरली रिकॉर्डेड होना चाहिए। क्या मतलब, दरखास्तें जमा हुई बाकायदा डायरी में, नायब कासद की अलहदा, लैब अटेंडेंट की अलहदा, चौकीदार की अलहदा, इन सब लोगों की जो एप्लीकेशंस आएंगी वो अलहदा रजिस्टर बनाएं, लोगों की ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगाएं, वो हर एप्लीकेशन को उसमें दर्ज करेंगे फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि यही चीज़ें हैं जिनमें गड़बड़ होती है और बंदा पकड़ा जाता है और उसके पास फिर सबूत नहीं होता और बंदा फंस जाता है। ठीक है, आगे फिर आप क्या करेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। और आपको पता है मैंने बताया इंटरव्यू 3 लोगों की कमेटी करेगी, और वो कमेटी अगर उनमें से किसी का भी कोई रिश्तेदार इंटरव्यू दे रहा होगा तो कमेटी से साइड पे हो जाएगा, हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देगा, वो को और बंदा नॉमिनेट कर देंगे, वो इंटरव्यू नहीं लेगा, ये रूल है। अच्छा, उसके बाद इंटरव्यू जब जनाब स्टार्ट होंगे तो डेफिनेटली इंटरव्यू आपको मैंने बता दिया है कि इंटरव्यू रिक्रूटमेंट कमेटी है जो 3 बंदों पे मुश्तमिल है, एक एसओ एचईडी से, असिस्टेंट डायरेक्टर डीपीआई से, और एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिस ग्रेड की 1 से 3 है तो प्रिंसिपल साहब, आगे 4 से 15 है तो डिप्टी डायरेक्टर साहब। ठीक हो गया, वो कमेटी में बैठेंगे, वेन्यू आपने लिखा होगा, वहां लोग पहुंचेंगे, लिस्ट लग गई होगी, टाइम आपने बता दिया होगा, तीनों मेंबर आ जाएंगे, बाहर आपकी टीम बैठी होगी जिनके पास रिकॉर्ड होगा। जब लोग आएंगे, अब एक यही स्क्रूटनी कमेटी जो आपने पहले बनाई थी वो बाहर बैठी होगी, वो उनकी असल डिग्रियां चेक करेगी, क्योंकि ये आपका काम नहीं है, आपके ऑफिशियल चेक करेंगे, सीएनआईसी चेक करेंगे। अब इसको चेक करना बहुत आसान है,
नादरा ने एक नंबर दे दिया हुआ, उसमें नंबर डालें, बंदे का असल CNIC निकल आता है। डिग्रीज की जब आप बात करें इंटर और मैट्रिक की, तो वहां बैठे बैठे एक बंदे को कंप्यूटर पे बैठाना है। बोर्ड्स ने सारे रिजल्ट अब जो है ना वो ऑनलाइन किए हुए हैं, वो चेक करा लें। जब ग्रेड 1 के बंदे को भर्ती करेंगे तो वो तो आपके इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनके लिए डिग्री की जरूरत नहीं। हाँ, अगर वो बंदे जो नायब कासर लगने के लिए आए हैं लेकिन उसने BA किया हुआ, MA किया हुआ, उसकी डिग्रियां जरूर चेक करें, चूंकि जब वो भर्ती होगा उसके बाद वो इन सर्विस आगे तरक्की भी करेगा, तो उसकी डिग्रियां आपने चेक करानी है। मैट्रिक और FA वहां चेक कर लें, चूंकि BA का ऐसा डिस्पेंसेशन नहीं है। वो फिर हम लेटर में लिख देते हैं, ऑफर लेटर के अंदर और अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर, कि आपकी डिग्रियां चेक कराई जाएंगी। अगर किसी सूरत में किसी स्टेज पे भी बोगस साबित हुई, न सिर्फ आपके खिलाफ पर्चा कटवाया जाएगा, बल्कि जितने पैसे आपने लिए वापस आपसे लिए जाएंगे। ठीक हो गया। ये स्क्रूटनी कमेटी CNIC देखेगी, डिग्रियां देखेगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखेगी। जब स्क्रीनिंग कर लेगी, चेक करेगी, ये वही बंदा है जो फोटो में है, CNIC में है, या जो एप्लीकेशन में जिसने अपनी तस्वीर लगाई हुई है, फिर आप बंदे को अंदर भेजेंगे। अंदर जनाब उसका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू जब सारा हो जाएगा, चेयरमैन और वो सारे लोग उसका इंटरव्यू कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। जितने लोग उन्होंने रखने हैं, 15 लोग रखने हैं, 15 लोग आगे, 15 के बाद और भी लोग हैं जो एलिजिबल तो हैं, लेकिन वो सीटें उतनी नहीं है। जितनी सीटें होंगी उतने लोगों को आप ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेंगे। जब आपने देख लिया कि फाइनल मेरिट लिस्ट बन गई है, इसको साइन कर दिया गया है, तीनों मेंबरों ने साइन कर दिया है। अब बात का ये भी होता है ना, एक मेंबर जो है वो कहता है मैं नहीं साइन करता, तो उसे कहें आप डिसेंटिंग नोट लिख दें, इख्तलाफी नोट लिख दें, बाकी 2 साइन कर देंगे। क्योंकि उसमें 2 लोगों ने कर दिए तो वो वैलिड हो गया। अगर 2 ने इख्तलाफी नोट लिख दिया तो अकेले बंदे के किए हुए साइन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब जब मेरिट लिस्ट बन गई, तीनों ने साइन कर दिए, आप बाहर इसको डिस्प्ले करेंगे ताकि सारे लोग देख लें। फिर टाइम आप बता देंगे कि जनाब इस इतने टाइम तक आप लोगों को जो है ना वो ऑफर लेटर आ जाएंगे। फिर आप उनको ऑफर लेटर जो है वो जारी करेंगे, उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखेंगे कि ये टर्म एंड कंडीशन है। 7 दिन का आप टाइम देंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर आप ज्वाइन करें जी। अब जो लोग ज्वाइन कर लेंगे उनको आप अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर देंगे। और याद रखें कि जितना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, अब मैं बात दोनों की कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट की भी रेगुलर की भी, एक ही बात है, ये 190 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल होना है। यही कमेटी, यही प्रोसेस, यही सारा कॉन्ट्रैक्ट में है, रेगुलर में 190 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम होना है। 190 से 191 वाला दिन आ गया और आपने किसी का अपॉइंटमेंट जारी नहीं किया तो आप दोबारा जारी नहीं कर सकेंगे। करेंगे तो आप पे खुदा ना खास्ता पीड़ा और लोग एंटी करप्शन में चले जाएंगे कि इसका टाइम पीरियड खत्म हो गया था, इसने बंदे को फिर भी भर्ती कर लिया। इससे आपने बचना है। ठीक है। टर्म एंड कंडीशन लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे कि आपने जनाब मेडिकल जाके करवाना है, वो हॉस्पिटल से मेडिकल करवाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। याद रखें पूरी सर्विस में 60 साल की नौकरी के अंदर आपने सिर्फ एक ही दफा मेडिकल करवाना होता है। अगर आपकी पूरी सर्विस में कोई गैप नहीं है तो सिर्फ एक ही दफा मेडिकल होगा। अगर आपने थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहे हैं, एक ही मेडिकल होगा। अगर आपने एक नौकरी ली, छोटे ग्रेड में थी, आपने छोड़ दी, या थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं गए, आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, 1 दिन का भी गैप आ जाएगा, या पिछली नौकरी अगर थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं गए तो आपको नया मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अदरवाइज एक ही मेडिकल सर्टिफिकेट अगर किसी बंदे ने कराया है, उसकी नौकरी में गैप नहीं है, तो खुदारा उससे दोबारा आपने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगना, रूल नहीं है। ठीक हो गया। टर्म एंड कंडीशन लिखेंगे, वो मेडिकल करा के आएगा, उसके बाद आप उस बंदे को ज्वाइन करा देंगे। अब ये मैं आगे जाने लगी, ये वो सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं। आपने एडवर्टीजमेंट करनी है, 2 अखबारों के अंदर आपने इश्तहार देना है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिलैक्सेशन इसमें कोई नहीं है, ये सारी आपने देनी है। सिलेक्शन कमेटी मैंने बता दिया, वो इंटरव्यू करेगी, वो कौन सी है वो भी बता दिया। 190 दिन का टाइम होगा, ये भी आपको मैंने बता दिया। पूरे पंजाब से वो आएंगे। अब अगर 7 दिन का टाइम दिया, बंदे ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, या एक्सेप्टेंस तो दे दी, बाद में अपॉइंटमेंट लेटर को जाके मेडिकल करा के ज्वाइनिंग नहीं दी, तो अगर 7 दिन गुजर गए या 15 दिन आपने दिए वो गुजर गए, तो उसके बाद उस बंदे का इस्तेहकाक खत्म। नौकरी मेरिट में 16वें नंबर पे बंदे को आप दे देंगे। PPSC भी ऐसे ही कर रही है और बाकी लोग भी ऐसे ही। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दी है। इसमें अब जो अहम चीज है आपको बताने वाली, वो है आपकी रिटायरमेंट के बारे में। तो हम पोस्ट रिटायरमेंट में देख लेते हैं। ये वो कमेटी है जी, 2004 में नोटिफाई हुई है, ये इसके मेंबर हैं, ये मौजूद है। अगर किसी की कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो जनाब हमारी PHEC ने बड़ी शफकत की हुई है, सब कुछ लगा हुआ है PHEC की वेबसाइट के ऊपर। आप वहाँ से हमारे ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी वहाँ पे लगे हुए हैं, आप दोबारा पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। मुझसे भी कोई चीज़ आप पूछना, ये वो रूल है।
1973 का, जिसके तहत कोटा डिटरमिन किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कोटा कैसे डिटरमिन करना है। डिसेबल लोग जो होते हैं उनका 3% कोटा होता है और ये टोटल इस्टेब्लिशमेंट पे निकालना है। टोटल इस्टेब्लिशमेंट का मतलब आपके उस दफ्तर में जितनी भी ग्रेड 1 की पोस्टें हैं वो सारी टोटल इस्टेब्लिशमेंट है। ग्रेड 2 की जितनी पोस्टें हैं टोटल इस्टेब्लिशमेंट है। ग्रेड 3 की है टोटल इस्टेब्लिशमेंट है। तो अगर आप ग्रेड 1 के लोग भर्ती करने लगे तो टोटल इस्टेब्लिशमेंट आपने देखनी है, ग्रेड 1 के कितने लोग हैं उसका 3% आपने लगाना है। और वो बंदे अगर भर्ती हो जाए 3% कोटे पे, पूरा आपने 3% कोटे पे बंदे लगा दिए, दोबारा जब भर्ती होगी जब तक वो 3% आपने लगाए हैं उनमें से किसी की डेथ होगी, कोई छोड़ के जाएगा, सीट वेकेंट जब तक प्रमोशन के बाद या छोड़ने के बाद या मरने के बाद खाली नहीं होगी तब तक आप दोबारा उस कोटे का बंदा भर्ती नहीं कर सकते। क्योंकि 3% अगर आप पहले भर्ती कर चुके हैं फिर दोबारा करेंगे तो वो तो 6% हो जाएगा, ये 4% हो जाएगा। तो कोटे को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, जितने परसेंट है उतना बाकी, वरना आप ओपन मेरिट का कोटा खा जाएंगे। माइनॉरिटी कोटा इसके थोड़ा उलट है। माइनॉरिटी अकलियती कोटा ये होता है कि जिस वक्त आपने फर्ज करें 10 सीटें एडवर्टाइज करने लगे हैं तो 10 सीटों के अंदर 5% आपने माइनॉरिटी की सीटें रखनी है। ये खाली सीटों पे डिटरमिन होता है, टोटल इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं। अब आ जाए वुमेन कोटा, ये 15% होता है। ये टोटल काडर पे निकालते हैं। काडर का मतलब मैंने आपको बता दिया, यूनिट ऑफ सर्विस है, ग्रुप ऑफ सर्विस है, जिसमें एक ही सर्विस रूल और एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन के लोग होते हैं, वो काडर होता है। वहां टोटल आपने देखना है 50 लोग हैं, 50 के ऊपर 15%। अगर आप देखें पूरा 15% नहीं निकालना, थोड़ा थोड़ा निकालना है। 15% निकालेंगे अगर सीटें ही थोड़ी हैं तो सारी तो फिर कोटे में चली जाएंगी, ओपन मेरिट पे कौन आएगा? माइनॉरिटी पे आप नहीं कर सकेंगे, डिसेबल पे आप नहीं कर सकेंगे। तो कोटा जितना आपने करना है, जब आपने अगर मुकम्मल एग्जॉस्ट कर लिया फिर दोबारा भर्ती तब होगी जब उस कोटे के लोग खाली होंगे, निकलेंगे, जाएंगे, सीटें खाली होंगी। अगर आपने 15 में से 7.5% भर्ती कर ली थी या 7% कर ली थी तो अगली में 7% कर लें। भर्ती हो जाए, पूरे कोटा एग्जॉस्ट हो जाए तो दोबारा बंदा तब आएगा जब वो सीट खाली होगी। फिर इन सर्विस कोटा भी ग्रेड 1 से लेके, यानी ग्रेड 1 से लेके 11 तक जूनियर क्लर्क होते हैं, इनके बच्चों का कोटा होता है 20%। वो लोग अप्लाई करते हैं, उनका कोटा भी उसमें से डिटरमिन करते हैं और उनको भी रखते हैं। और ये भी काडर स्ट्रेंथ पे होता है, यानी टोटल जो काडर में उस ग्रुप में जितनी सीटें होती हैं उसका 20%। आप अगर पूरा 20%, बहुत ज्यादा सीटें हैं तो पूरा 20 निकाल लें, थोड़ी सीटें हैं तो 10% निकाल लें, 10 अगली दफा, 5% निकाल लें, 5 अगली दफा। वो कॉम्पिटेंट, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की मर्जी होती है। ठीक है, इश्तहार आपने देना है अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने, मैंने बता दिया, कोई और नहीं, जो जिसकी अपॉइंटिंग है वही देगा। अब डिसेबल जो है वो टोटल एस्टेब्लिशमेंट पे निकलता है। माइनॉरिटी कोटा जो है वो 5% टोटल जो खाली सीटें एक वक्त में आप भर्ती के लिए इश्तेहार भेजते हैं उस पर निकलता है। वुमेन का कोटा काडर स्ट्रेंथ पे निकलता है और इन सर्विस कोटा जो है 20% वो भी काडर स्ट्रेंथ पे निकलता है। ये है जनाब कोटा निकालने का तरीका। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, सीटें कैलकुलेट करनी मैंने आपको बताया था ना कि मैं इसको स्लाइड रीडिंग बहुत कम करता हूँ, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, सिलेक्शन कमेटी, 15 दिन, अखबारें, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये सारे क्या हैं। अब जो असल चीज़ है वो है कि 17A के तहत भी हमने भर्ती करनी होती है। 17A क्या है? 17A का मतलब है जब ड्यूरिंग सर्विस किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या वो बंदा मेडिकली अनफिट हो जाता है तो उसकी बीवी को या उसकी बेवा को या उसके बच्चों को आप 17A के तहत भर्ती कर लेते हैं। याद रखें कानून के अंदर लिखा हुआ है चिल्ड्रन और विडो स्लैश वाइफ, पहले आकर बच्चों का, बच्चे नहीं है, फिर जनाब विडो का या वो वाइफ का। ठीक है, अगर डेथ हो गई है तो विडो है, अगर बंदा इनवैलिड हो गया, जिंदा तो है लेकिन काम नहीं कर सकता मेडिकली, तो फिर उसकी वाइफ को नौकरी मिलेगी, लेकिन पहले हक बच्चों का फिर उनका। अब 17A की कुछ, फिर 10 नंबर आपको पीपीएससी में भी मिलते हैं ग्रेड 16 या उसके ऊपर के लिए। अगर आप मेरिट में रह रहे होते हैं तो 16 नंबर लगा के आपको, अगर ओपन मेरिट पे आते हैं तो फिर वो 10 नंबर नहीं आपको मिलते। अब मैं आपको बताऊं कि पेंशन रूल 1955 कंपेंडियम 2008, उसमें ये बताया गया है कि जो मेडिकली बंदा अनफिट होगा ना, वो, अब मेडिकली अनफिट कैसे होता है? कॉलेज के अंदर एक बंदा काम कर रहा है, प्रिंसिपल लेटर लिखेगी जनाब, चूंकि प्रिंसिपल साहिबा जो हैं या प्रिंसिपल साहब जो हैं वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, वो डायरेक्ट टीएचक्यू को या सर्विसेज हॉस्पिटल के एमएस को लेटर लिखेंगे कि ये बंदा मेडिकली आ नहीं रहा, ये तभी तौर पे काम करने के काबिल नहीं रहा, इसको एग्जामिन करें। वो एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि ये बंदा जो है मेडिकली अनफिट है, और उसकी आगे जाके फिर कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी ए का मतलब होता है वो बंदा मेडिकली जो ना यहाँ काम कर सकता है ना आगे कहीं काम कर सकता है, उसके बच्चों को और उसकी बीवी को नौकरी मिलती है, जो जिसको भी चाहे। कैटेगरी बी का वो बंदा होता है कि जो यहाँ जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ करने के काबिल तो नहीं है, लेकिन किसी और नेचर की जॉब जहाँ उसकी ये
जो मेडिकल डिजीज है वो आड़े नहीं आ सकती, वहां काम कर सकता है। पहले ए और बी दोनों कैटेगरी को नौकरी मिलती थी, अब ए को मिलना शुरू हो गई थी, एसएनजीईडी ने कहा बी को नहीं मिलेगी, तो किसी ने कोर्ट केस कर दिया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच में, तो उन्होंने सेट असाइड कर दिया कि कोई कैटेगरी नहीं है, 17A का मतलब है कि आपने नौकरी देनी है, कंपनसेट करना है, आपने नौकरी देनी है, वो नौकरी देते हैं। उसके बाद फिर ये है कि 17A के तहत पहले कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी मिलती थी, लेकिन अब रेगुलर मिलेगी, याद रखें, रेगुलर जॉब आपने देनी है। उसके बाद कुछ और चीजें हैं, 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है डिसेबल कैंडिडेट को 17A के ऊपर, इसी तरह 5 साल की एज रिलैक्सेशन जनरल है जो मिलती है। फिर अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कोई बैन नहीं होता, किसी वक्त भी जब बंदा किसी की डेथ हो, मेडिकली अनफिट हो, फौरी तौर पे बच्चे, बेवा या बीवी को नौकरी देनी जरूरी होती है। फिर ये होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप हमें ये बताएं, देखें अगर मियाँ की डेथ हो जाती है ना तो बीवी की नौकरी मिलती है, लेकिन बीवी की डेथ हो जाए तो मियाँ को 17A के तहत नौकरी नहीं मिलती। अब अक्सर लोग ये कहते हैं नौकरी इसकी एज क्या, कब मिलेगी? मतलब ये है कि अगर एक बंदा आज उसका बच्चा जो है वो 8 साल का है, ठीक है, और उसकी जो बेवा है वो नौकरी नहीं करना चाहती, बच्चा जब 18 साल का होगा, क्योंकि 18 साल के बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है अंदर रूल, उससे नीचे आपने चेक करना है आईडी कार्ड पे 17 से 18 साल से एक दिन भी कम हो तो बंदा नौकरी पे नहीं आ सकता। तो 18 साल आपने चेक कर लेना है कि अब फिर वो बंदा, बच्चा 8 साल का है, उसको वो तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब वो 10 साल बाद जब 18 साल का होगा ना तब वो नौकरी लेने आएगा, तो आप ये नहीं कह सकते आप तो 10 साल के बाद आ रहे हैं। वो बंदा अगर 18 साल के बाद भी आएगा और वो अंडर एज है, वो ओवर एज नहीं हुआ, तो नौकरी देनी पड़ेगी। सिर्फ एज अगर बढ़ गई है, मजीद 10 साल होती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के साथ, वो 17A के तहत दे सकते हैं। अच्छा आगे चलें, अगर कहते हैं जी दो बाप और माँ दोनों सरकारी मुलाजम है, तो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, 1000 दफा ना करे, दोनों की डेथ हो जाती है, तो फिर नौकरी कितने बच्चों को मिलेगी? तो फिर एक बाप की तरफ से मिलेगी, एक माँ की तरफ से, 2 नौकरियां मिलेंगी। फिर वो कहते हैं जी अगर किसी ने 2 शादियां की हो तो फिर क्या होगा? तो फिर पहली बीवी और उसके बच्चों की बारी आएगी, अगर वो नहीं लेंगे या पहली बीवी की डेथ हो गई है, बच्चा कोई नहीं, तो फिर दूसरी बीवी की बारी आएगी। और आगे जाके फिर एक ये भी सवाल आया करता था कि जनाब ये कैसे जो है ना, अगर फर्ज करें बेटा या बेटी शादीशुदा है तो फिर किसको नौकरी मिलेगी, उसको नौकरी मिल सकती कि नहीं? तो याद रखें अगर ओवर एज नहीं है तो शादीशुदा बेटे को भी नौकरी मिलेगी, बेटी को भी मिल सकती है, ये एक ही बच्चे को मिलनी है, बाकी सारे बहन भाई स्टैम्प पेपर पे लिख के देंगे कि ये हमारा सगा भाई है, हम इसकी नौकरी के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, दोबारा हम कोई ना 10 नंबर की डिमांड करेंगे और ना नौकरी की डिमांड करेंगे, क्योंकि एक ही दफा एक ही बच्चे को नौकरी मिलती है। अच्छा अब मैं प्रोबेशन में आपको बता चुका हूं कि जब बंदा प्रमोट होकर अगले ग्रेड में जाता है तो ये आजमाइशी पीरियड 1 साल का होता है, और जब बंदा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आता है, इनिशियल रिक्रूटमेंट में, तो ये आजमाइशी पीरियड 2 साल का होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बंदा रेगुलर हो जाता है, लियन होता है, ये आपका इस्तेहकाक होता है, आपका राइट होता है, अगर थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं तो पीछे हक होता है, अगर आगे आपका दिल नहीं लगा, नौकरी सख्त है, आप समझते हैं ये मेरे जेन के मुताबिक नहीं है, तो आप 3 साल के अंदर अंदर वापस आ सकते हैं, या जब तक आप वहां पे रेगुलर ना हो वापस आ सकते हैं। अगर इससे ज्यादा अरसा हो जाए, आप रेगुलर हो जाए, तो फिर ये इस्तेहकाक खत्म हो जाता है। अब मैं आपको जल्दी से बताने लगा हूं कि ये जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है इसकी डिफरेंट चीजें क्या हैं। ये जनाब 3 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। आप में से बहुत सारे दोस्त जो कॉन्ट्रैक्ट पे रहे हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि क्या क्या मसले मसाइल का सामना करना पड़ा। एक पे पैकेज होता है कि लमसम पैसों पे, जब लेक्चरर आए थे 2002 में 6,210 रुपए पे, तो वो पे पैकेज था जनाब, उनको और कोई चीज़ नहीं मिलती थी, किसी किस्म का कोई उनको डिस्पेंसेशन नहीं मिलती थी, कोई अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलती थी। पे स्केल पे जब हुए तो फिर इंक्रीमेंट भी लगना शुरू हो गई, फिर पे अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलना शुरू हो गई, फिर बाकी मामलात भी सारे के सारे जो है ना वो आ गए। 30% सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है इन लियो ऑफ पेंशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी पेंशनेबल नहीं होती, इसलिए वो 30% साथ साथ ही उसको, ये नॉन ट्रांसफरेबल थी, बाद में मेल को 3 या 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में 1 चांस दे दिया गया, फीमेल को 2 चांस दे दिए गए। डिसेबल के बारे में कहा जाता है कि जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट पे घर भर्ती करें, घर के पास लगाएं, कॉन्ट्रैक्ट वाले ट्रेनिंग भी करेंगे, इनकी परफॉर्मेंस भी एवेल्यूएट की जाएगी, क्योंकि अब पंजाब गवर्नमेंट ने रेगुलराइजेशन एक्ट 2018, 3 साल सर्विस हो जाए, सेटिस्फैक्ट्री हो, कमेटी हो के कर दे तो बंदा रेगुलर हो जाता है। टीएडीए भी कॉन्ट्रैक्ट वालों को वैसे ही मिलते हैं। इन लोगों के लिए
10 दिन की अर्न लीव होती है उनके लिए जो नॉन वोकेशनल अदारों में काम करते हैं। नॉन वोकेशनल वो अदारे होते हैं जहां छुट्टियां नहीं होती। हम लोग वोकेशन डिपार्टमेंट से हैं, चूंकि हमें सर्दियों की छुट्टियां भी होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं। वो अलहदा बात है कि बीएस कॉलेजेस में अब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, लेकिन पैसे फिर भी कट रहे हैं। इस पे एप्लीकेशन दें तो आपको ये मिल सकता है। उसके बाद रेगुलर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे जा सकते हैं, उसका पीछे लियन रहेगा। अगर 5 साल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा तो सीनियरिटी से नाम निकाल दिया जाएगा। एनओसी लेना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला आगे जाता है या रेगुलर वाला आगे अप्लाई करता है। कैजुअल लीव वैसे ही है 24 डेज। 10 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव भी मिल सकती है कॉन्ट्रैक्ट वालों को। 15 दिन की स्पेशल इमरजेंसी में भी कैजुअल लीव मिल सकती है। 45 दिन की इनको हज लीव मिलती है फुल पे के साथ। दोबारा हज करना है तो 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे। मेडिकल, अगर खुदा न खास्ता मेडिकल केस हो जाए कॉन्ट्रैक्ट वाले का, 3 महीने तक जनाब उसको मेडिकल लीव मिलती है विदाउट पे। 3 महीने से आगे चला जाए तो बंदे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। मिटर्निटी लीव 3 से 5 साल के अंदर एक ही दफ़ा 90 दिन की मिलती है, बाद में विदाउट पे है, बल्कि वो मिलती नहीं है। डिसिप्लिनरी एक्शन पीडा के तहत ही होता है कॉन्ट्रैक्ट वालों के खिलाफ भी, उसका बाकायदा लेटर है। चूंकि अगर ये मिसकंडक्ट करें, ग्रेव करें, करप्शन करें तो इनके खिलाफ भी पीडा लग सकता है। 2004 में, अब 2010 के अंदर एसएनजीएडी ने नोटिफाई किया हुआ है। ग्रुप इंश्योरेंस, बेनेवोलेंट फंड, ये इनका कोई नहीं होता, ना पेंशन कंट्रीब्यूशन होती है, ना इनको पेंशन मिलती है। ठीक है, इसकी सीनियरिटी काउंट हो जाती है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का, लेकिन आपको पेंशनरी बेनिफिट इसके नहीं मिलते, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है। मेडिकल कराना पड़ता है इसके लिए भी। लें जनाब, ये तो थी हमारी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी, और इसके साथ थी हमारी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी। अब मैं जाने लगा हूँ पोस्ट बेनिफिट, जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। इसके लिए 1 मिनट लगेगा, क्योंकि मुझे दूसरी स्लाइड ओके करनी पड़ेगी, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि स्लाइड ओके है तो फिर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स की हम बात करने लगे। एंड पे मैं आपको 5 से 10 मिनट देने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपके सवालात भी लूंगा। हमारा तीसरा सेगमेंट है, वो है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, के जब बंदा रिटायर हो जाता है तो फिर उसको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। याद रखें, इसमें दो तो बड़ी बड़ी ही अहम चीज़ें हैं जिनको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। वो एक है पेंशन, और दूसरा है आपकी एलपीआर या लीव इनकैशमेंट, कौन सी लेनी चाहिए। बाकी ग्रुप इंश्योरेंस है, वो पैसे वो तो डेथ की शक्ल में मिलते हैं, लेकिन उस पर केस चल रहा है कि अगर बंदा रिटायर हो तो उसको दिए जाएं। इसके अलावा खुदा न खास्ता रिटायरमेंट के बाद बंदे की डेथ हो जाए तो फिर स्कॉलरशिप्स हैं, एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं। वेडिंग बेटियों की करें तो उस पर पैसे मिलते हैं। डेथ खुदा न खास्ता हो जाती है तो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से हैं, वो भी काइंडली ज़रा आप देख लीजिए। देखें, पेंशन टोटल इसके 2 हिस्से होते हैं। एक जो प्योर आपको पेंशन मिलती है ग्रॉस पेंशन के ऊपर, वो 65% होती है, और उसकी कम्यूटेशन या जिसे ग्रेजुएटी कहते हैं, स्पेशल जो डिस्पेंसेशन होती है, वो 35% होती है। यानी ये टोटल 100% होता है, जिसके 2 हिस्से होते हैं। 65% जिसमें से आपकी नेट महीने बाद आपको पेंशन मिलती है, और जो आपको लमसम पैसे मिलते हैं एक ही दफ़ा को लाखों में, वो ग्रेजुएटी उसको कहते हैं। ये स्पेशल गिफ्ट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, अब पेंशन देखते हैं क्या है। रेगुलर पेमेंट मेड बाय द स्टेट टू पीपल ऑफ और अबव द ऑफिशियल रिटायरमेंट एज एंड टू सम विडोज एंड डिसेबल्ड पर्सन, ये वो होती है। और ये सेक्शन 12 है सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 का, जिसके तहत मिलती है। पेंशन रूल्स है 1955, जिसके सेक्शन 1.6 सब सेक्शन 2 के तहत 2008 के कंपेंडियम के मुताबिक ये मिलती है। ग्रेजुएटी मीन्स एनी पेमेंट of more than nominal monetary value in the form of cash for the services rendered by the civil servant paid from the provincial consolidated fund of the province। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आई हैं ऑनरेबल कॉलीग्स, मैं आपके लिए वो क्लियर कर देता हूँ। ग्रेजुएटी मैंने आपको बताया, ये स्पेशल लमसम पेमेंट होती है, जिसे कम्यूटेड अमाउंट भी कहते हैं। यानी आपकी जो आपको पेंशन मिलती रहनी है ना, उसी में से ये हिस्सा होता है। यानी देखें ना, 100% अगर आपको पेंशन मिलनी थी तो 35% आपको पहले ही पैसे मिल गए। 65% आपको जनाब उसमें से जो नेट आपकी पेंशन निकलेगी वो हर महीने आपको मिलती
मिलती रहेगी, आपको मिलेगी, आपके बाद आपकी विडो को मिलेगी, विडो के बाद अनमैरिड बेटी को मिलेगी, अगर उसको नहीं मिलती बच्चों को मिलेगी, अगर अंडर 21 एज हैं, उसके बाद अगर इनमें भी कोई नहीं रहता तो फिर बाप को मिलेगी, माँ को मिलेगी। यानी ये गवर्नमेंट ने इतना बड़ा जो है ना वो बेनिफिट दिया हुआ है कि जब तक आपकी फैमिली लिस्ट खत्म नहीं होनी ना, ये पेंशन खत्म नहीं होनी है, पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए ये बड़ी अच्छी चीज है, अल्लाह करे ये कंटिन्यू रहे। आगे चलते हैं। और ये एलिजिबिलिटी किन की है, पेंशन किन को मिलती है, पहली बात तो ये है ना। अच्छा, पीछे एक और चीज रह गई थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, जिसे पीसीएफ भी कहते हैं। पीसीएफ बुनियादी तौर पे वो फंड होता है जिसे गवर्नमेंट का बटवा कहते हैं। जितने पैसे आते हैं ना, आप जितना टैक्स जमा कराते हैं पंजाब के अंदर, पंजाब के गवर्नमेंट के खाते में, वो सारा पीसीएफ में जाता है, जो कि आप फॉर्म 1 पे जमा कराते हैं। जितना पैसा आ रहा होता है ना, फेडरल से मिलता है या टैक्सेस से मिलता है या जो भी होता है, वो सारे का सारा पैसा पीसीएफ में जाता है। यानी इस एक बटवे में से कहते हैं द पर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बटवे में जाता है। इससे आगे फिर डिसबर्समेंट होती है, बजट मिलती है, ग्रांट मिलती है, वो सारी चीजें इसी में एक्सेस पैसे और सरेंडर पैसे जाते हैं, सारा कुछ। अच्छा, आगे चलते हैं। 25 साल की उम्र होनी चाहिए आपको पेंशन लेने के लिए, ठीक है, या 60 साल की उम्र पे सुपर एन्युएशन आप हुई हो, यानी 60 साल आपने नौकरी की हो, सुपर एन्युएशन होती है। डेथ की शक्ल में 10 साल सर्विस ना हो तो फैमिली पेंशन नहीं मिलती, ये आपने याद रखना है। जो लोग फंडों पे रखे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं, या ऐसे लोग रखे हुए हैं जिनकी लेटर्स में लिखा हुआ है कि ये नॉन पेंशनेबल है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाली है, तो उसकी पेंशन नहीं मिलेगी। ये प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड मैंने आपको बता दी है। वो बंदा जो इससे तनख्वाह ले रहा है ना, सिर्फ उसको पेंशन मिलती है और किसी को नहीं मिलती, क्योंकि ये प्योरली सिविल सर्वेंट होता है, जिसे पीसीएफ से पैसे मिलते हैं, यानी गवर्नमेंट के बटवे से। ठीक है। प्रोबेशनर्स जो होते हैं, अगर उनको अलाउ किया जाए तो आपका जितना प्रोबेशन के ऊपर पीरियड होगा, अगर आप बाद में कंफर्म हो जाते हैं तो ये पीरियड भी पेंशन के लिए काउंट किया जाता है। आप जब ट्रेनिंग करते हैं तो जितना पीरियड आप ट्रेनिंग पे, लीगल ट्रेनिंग पे गुजारते हैं, वो भी पेंशन के अंदर काउंट होता है। और पेंशन लेने के लिए एक सबसे अहम चीज़ है, आपको पता है कि पीडा सर्विस के अंदर अगर लगे तो रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर अंदर ख़त्म होना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद लगे तो 1 साल में स्टार्ट होकर 2 साल में ख़त्म होना चाहिए। तो अब बंदा कहता है जब 2 साल ख़त्म हो गए तो पीडा तो लगेगा नहीं, तो फिर रिटायरमेंट वालों का क्या होगा? उनके ऊपर फिर ये 1.8 सेक्शन ए और बी पेंशन रूल 1955 अपडेटेड वाया कंपेंडियम 2008 के तहत गुड कंडक्ट होना जरूरी है, वरना एक पेंशनर को भी शो काज करके उसको सजा दी जा सकती है, ये सेक्शन ए और बी के तहत। ठीक है। अच्छा, अब पेंशन जो है वो ग्रांट नहीं होती उस बंदे को जो सर्विस से डिसमिस हो जाएगा और या रिमूव हो जाएगा। अब रिमूवल का मतलब ये है कि आप एक सरकारी नौकरी से निकले, दूसरी नौकरी कर सकते हैं। डिसमिस का मतलब है एक दफ़ा सरकारी नौकरी से निकले तो ताहयात जब तक आपकी ज़िंदगी है सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। और ख़ास तौर पे वो बंदे जो मिसकंडक्ट, करप्शन या सबवर्सिव एक्टिविटी या इनएफिशिएंसी पे निकलते हैं। मिसकंडक्ट क्या है? जो एक जेंटलमैन का कॉन्डक्ट होता है, जो उसके खिलाफ हो, वो मिसकंडक्ट है। मतलब आप बगैर पूछे छुट्टी कर लें, आपको कहें टाइम पे आए, आप टाइम पे ना आए, क्लास में टाइम पे जाओ, टाइम पे ना पढ़ाएं, ये सारा मिसकंडक्ट है। करप्शन क्या है? आप अपने ज़राए वसाइल से ज़्यादा में रह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सबवर्सिव एक्टिविटीज़ क्या है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई कर देते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ मामलात कर देते हैं। इनएफिशिएंसी का मतलब है कि आप अहल नहीं है, आपको जो काम दिया जाता है वो करते नहीं है। इसकी बुनियाद पे अगर बंदा सर्विस से निकाला जाएगा तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। फिर लीव की आपको पेंशन मिलती है, मास वाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये ईओएल इसको कहते हैं, ऑनरेबल कोलीग। ईओएल का मतलब होता है ऐसी छुट्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, गैर मामूली छुट्टी जो बगैर तनख्वाह के मिलती है। और याद रखिएगा, जो छुट्टी तनख्वाह के बगैर मिलती है वो कभी सर्विस में काउंट नहीं होती। तो ईओएल ये जो है ना, ये पेंशन में काउंट नहीं होती। डेपुटेशन पे बंदा जाए तो हाँ, आगे जब वो डेपुटेशन में जाएगा तो ये सारा पीरियड पेंशन में काउंट होगा। एक बंदा जो सस्पेंड कर दिया जाता है उसको भी पेंशन मिलेगी अगर वो बाद में बहाल हो जाता है। लेकिन अगर एक सस्पेंडेड बंदा बाद में डिसमिस फ्रॉम सर्विस या रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो जाता है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। अब पेंशन कितनी किस्म की होती है? कंपनसेशन पेंशन है, ये मैं साथ साथ ही बता देता हूं आगे, फिर मैं स्लाइड, चूंकि टाइम भी थोड़ा रह रहा है, आपको सवाल जवाब का टाइम भी देना है। कंपनसेशन पेंशन ऑनरेबल कोलीग ये होती है कि आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो पोस्ट खत्म हो गई, उसकी एबॉलिशन हो गई या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई, तो फिर वो आपको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप पेंशन ले लें या आप नई पोस्ट ले लें।
तो वो आपकी मर्जी होती है। इनवैलिड पेंशन ये होती है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो मेडिकल ग्राउंड्स पे, जो हमने 17A में डिस्कस किया, मेडिकल ग्राउंड पे जब आप अनफिट हो जाते हैं तो ये इनवैलिड पेंशन होती है। और याद रखें ये तब चलती है जब वैलिड आपके पास सर्टिफिकेट होता है, ड्यूली इशूड बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर रिजाइडिंग एट लाहौर, द डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट इज services hospital. And when you talk about the districts or tehsils, so their THQs and DHQs, they are the authorized hospital to examine an employee and a civil servant, and then the certificate is issued on behalf of that। 17A के तहत नौकरी भी मिलती है और इनवैलिड पेंशन भी चलती है। सुपर एन्युएशन पेंशन वो होती है जब आप 60 साल की एज के ऊपर माशाल्लाह 60 साल नौकरी कर लेते हैं, आपकी एज 60 साल की हो जाती है, तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से एक दिन पहले जो रिटायर होते हैं, इसे सुपर एन्युएशन पेंशन कहते हैं। रिटायरिंग पेंशन ये होती है कि जब आप वॉलंटरीली आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल आपके सर्विस कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि जनाब आपको रिटायरिंग सर्विस, जिसे प्री मेच्योर रिटायरमेंट सर्विस कहते हैं, वो रिटायरिंग पेंशन मिलती है। फैमिली पेंशन ये है कि खुदा न खास्ता पेंशनर की डेथ हो जाए तो उसके बाद उसकी फैमिली को जो मिलती है उसे फैमिली पेंशन कहते हैं। एंटीसिपेटरी पेंशन ये है कि एक बंदे के कागजात मुकम्मल नहीं हो रहे, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने सख्ती कर दी है कि आज बंदा इस महीने रिटायर हो रहा है ना, तो इस महीने उसको तनख्वाह मिलेगी, अगले महीने उसके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए पेंशन। तो अगर किसी बंदे के कागजात पूरे नहीं है और उसके और मामलात ऐसे हैं कि ये उसका पेंशन का मामला PPO पेंशन जो है ना वो जारी उसकी नहीं हो सकती, तो आप क्या करेंगे, एंटीसिपेटरी पेंशन उसको जितनी एक्चुअल बननी है ना उसका 80% उसको पहले ही क्रेडिट कर देंगे और बाद में जब एक्चुअल उसकी पेंशन काउंट होगी तो वो जनाब उसके मुताबिक उसको मिल जाएगी। ये अब इसकी तफसील मैंने आपको बता दी है, अगली स्लाइडें इनकी सारी तशरीह है, इसलिए वो मैं उनको निकाल रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ ताकि आगे एक बड़ी काम की चीज़ है जो आप चाहेंगे कि आपको पता चले। ग्रेचुइटी के बारे में मैंने बता दिया है। फैमिली जो है ना, फैमिली का मतलब होता है बीवी या बीवियाँ, ठीक है, हस्बैंड की डेथ होने की शक्ल में फीमेल, उसकी बीवी, उसके बच्चे, विडोज, ठीक है। उसके बाद फैमिली पेंशन जो है वो चलती रहती है और फैमिली पेंशन का एक लंबा ट्री है जनाब जो चलता रहता है, किसके बाद किसको मिलनी है वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। विडो को मिलती है, उसकी बीवी की डेथ हो जाए तो हस्बैंड को मिलती है, ठीक है, वो इक्वली डिवाइड होती है। फिर फेलिंग अगर इन दोनों, ये दोनों नहीं है तो जो सबसे बड़ी विडो डॉटर है उसको मिलेगी, अगर वो भी नहीं है तो एल्डेस्ट विडो ऑफ अ डिजीज, बेटे की अगर बेटी है अगर वो विडो है फिर उसको मिलेगी, अगर वो भी नहीं है तो फिर बेटे को मिलेगी। अब देखें कितनी ये सहूलत है पेंशन की। खुदा न खास्ता वो भी नहीं है तो एल्डेस्ट अनमैरिड डॉटर को मिलेगी, अगर वो भी नहीं है तो एल्डेस्ट विडो डॉटर को मिलेगी। ये जनाब सारा, अगर ये भी सारे नहीं है तो फिर फादर को मिलेगी, फादर के बाद मदर को मिलेगी, अगर ये दोनों नहीं है तो 21 साल से नीचे जो भाई हैं उनको मिलेगी, अगर वो भी नहीं है तो अनमैरिड सिस्टर को मिलेगी, अगर वो भी नहीं है तो एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडोड सिस्टर्स को मिलेंगी। तो ये जनाब चलता रहेगा सारा रिस्ट्रिक्शन जो है ये एंड तक मामला चलता रहना है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी की सारी जो है ना। अब मैं आपको ये बताऊं कि पेंशन, ये जो LPR और लीव इनकैशमेंट में फ़र्क क्या होता है, ये मैं जल्दी से बता के फिर आपको थोड़ा सा बताता हूँ पेंशन कैलकुलेट कैसे होती है, फिर मैं आपके सवालात लूंगा। LPR का मतलब है लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट। इसका मतलब ये है कि ये आखिरी साल जो होता है ना, इसमें आप कहते हैं कि जी आप लीव सरेंडर कर देते हैं, आप कहते हैं जी मुझे साल के 365 दिनों के पैसे दे दें। ये दो चीजें हैं। लीव इनकैशमेंट का मतलब है आप पैसे ले लेते हैं, छुट्टी नहीं लेते। LPR का मतलब है कि आप छुट्टी जो है ना वो नहीं लेते, पैसे ले लेते हैं। ये दोनों के अंदर ये डिस्पेंसेशन है, ये बुनियादी फर्क है। क्या? LPR लीव प्रेपरेटरी टू रिटायर, यानी रिटायरमेंट की तैयारी करने के लिए गवर्नमेंट आखिरी साल में छुट्टी देती है 365 डेज की। वो आपकी मर्जी है कि वो पूरा साल आप काम भी कर लें या वो पूरा साल आप घर बैठ के तनख्वाह ले लें, आपकी मर्जी है। अगर आप कहते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं 365 दिन छुट्टी करूंगा, मैं घर बैठूंगा, तो आपको जनाब 365 दिन के पैसे मिल जाएंगे। सवाल ये है कि वो अर्न लीव आपके खाते में मौजूद हो, जितने पैसे होंगे उस आखिरी महीने में आप जो है ना वो कोई भी छुट्टी अगर अर्न लीव लेंगे ना तो आपके पैसे कट जाएंगे। अच्छा, अब लीव इनकैशमेंट में क्या होता है, आप पैसे ले लेते हैं,
ठीक है। गेट मनी सरेंडर लीव, आप कहते हैं जनाब मैंने छुट्टी नहीं करनी, मैं आखिरी साल में आऊंगा भी, मुझे लीव इनकैशमेंट भी दें 365 दिन की और आप तनख्वाहें भी लेंगे, तो इसका मतलब डबल फायदा किधर नजर आया, लीव इनकैशमेंट में। तो एलपीआर पे जाने के नुकसानात हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। विल गेट सैलरी एंड विल नॉट गो टू जॉब, यानी एलपीआर में क्या है, आपको तनख्वाह तो मिलती रहेगी, आप नौकरी पे नहीं जाएंगे क्योंकि आप लीव पे हैं। लेकिन लीव इनकैशमेंट में क्या होगा, आप नौकरी पे भी जाएंगे, आपको सैलरी भी मिलेगी, यानी 365 दिनों के पैसे भी मिलेंगे, वो बेसिक पे होती है। अब फर्ज करें आपकी 50,000 रुपया बेसिक पे है, पूरे साल का जनाब आपको बन गया 6 लाख रुपया, आपको वो 6 लाख भी मिलेगा, 12 महीनों की तनख्वाह भी मिलेगी, जुलाई में उसके ऊपर जनाब आपको पे स्केल भी रिवाइज होगा, दिसंबर में आपको इंक्रीमेंट भी लगेगी, तो पैसे किधर हैं ज्यादा, लीव इनकैशमेंट के अंदर, एलपीआर के अंदर नहीं है। अब एलपीआर में जब आप जाते हैं तो जब आपकी पेंशन काउंट होती है ना, उसमें कौन सी चीजें काउंट होती हैं, बेसिक पे, पर्सनल पे, एडहॉक रिलीफ जितने आपके होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल पे, ये सारे के सारे एडमिसिबल होते हैं, ये पढ़ते हैं तो आपकी पेंशन जो है ना वो उसमें आपको मिल जाते हैं सारे के सारे। इधर आपको क्या होता है, इधर आपको 365 दिन के लीव इनकैशमेंट भी इकट्ठी लाखों में मिल जाती है, 14-15 लाख रुपया। उसके बाद आपने 12 महीनों का है वो 6 लाख रुपए के करीब पैसे भी लिए, वो 6 लाख आपने ले लिए लीव इनकैशमेंट के, आपने 12 महीनों की तनख्वाह भी ले ली, आपने इंक्रीमेंट भी ले ली, आपने पे स्केल रिवाइज करा के पैसे भी बढ़ा लिए, तो ज्यादा फायदा किधर नजर आया आपको, लीव इनकैशमेंट की तरफ। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। एलपीआर जो है 1 महीना पहले स्टार्ट होती है, और ये याद रखें आपने एलपीआर पे जाना है या आपने लीव इनकैशमेंट लेनी है, रिटायरमेंट से 15 महीने पहले आपको ऑप्शन देनी पड़ती है। आपके पास एक चॉइस है, एक ही दफा आप चॉइस कर सकते हैं कि मैंने लीव इनकैशमेंट पे जाना है, बाद में आप कहने नहीं यार मैं एलपीआर ले लेता हूं क्योंकि मैंने कारोबार करना है। कारोबार करने वाले बंदों के लिए एलपीआर अच्छी है, कारोबार जिनका नहीं है उनके लिए लीव इनकैशमेंट अच्छी है। अब आप कहते हैं कि लीव इनकैशमेंट कर ली यार मैंने तो कारोबार करना है, तो आप जनाब क्या करें, कहेंगे जी मैं लीव इनकैशमेंट कैंसिल कराता हूं, मुझे एलपीआर दे दें। एक दफा कैंसिल कराने की ऑप्शन है, इसके बाद ये फाइनल हो जाती है। ठीक है, लीव इनकैशमेंट एग्जैक्टली स्टार्ट होती है 1 साल पहले ही एलपीआर स्टार्ट होती है। 365 डे की या छुट्टी ले लें या आप पैसे ले लें। एलपीआर में ऑप्शन एक ही दफा होती है रिटायरी के लिए, ठीक है, 15 महीने पहले आपने बतानी है ऑप्शन, उसके बाद एक दफा चेंज करने की आपके पास जनाब वो मौजूद है। तो अब देखें एलपीआर के अंदर क्या होता है, सिर्फ आपने छुट्टी इंजॉय की और आपको तनख्वाहें मिली हैं, और तनख्वाहें भी वो अलाउंसेस, उसके अलावा कन्वेंस कट गया, बाकी सारे कट गए। इधर आपको क्या हुआ, 365 दिन मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी ये तो आपको मिल गई ना सारे के सारे पैसे लीव इनकैशमेंट के, आपको पूरी की पूरी तनख्वाहें भी मिली, ठीक है, बेसिक पे भी, पर्सनल पे भी, क्वालिफिकेशन पे भी, स्पेशल पे भी, ये सारे के सारे भी आपकी तरह। तो ज्यादा फायदा लीव इनकैशमेंट में है, याद रखें, एलपीआर पे जाने पे नहीं है। आप आ जाएं टेक्निकल पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, अब चलते हैं पेंशन कैलकुलेट कैसे होती है, ये जल्दी से बता देता हूँ। गो कि ये आपने नहीं करनी होती, लेकिन आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, अब आपको पता चल जाएगा, तो कोई क्लर्क आपको डॉज नहीं कर सकता, आपको पता होगा कि ये कैसे कैलकुलेट होनी है। देखें, पेंशन कैलकुलेशन पहले होती है जी ग्रॉस पेंशन, ओवरऑल टोटल पेंशन, फिर उसमें से 65% जो निकलती है वो नेट पेंशन होती है, 35% जो होती है वो ग्रेजुएटी की होती है, जो मैंने बता दिया पेंशन क्या, ग्रेजुएटी पेंशन जो हर महीने मिलनी है, ग्रेजुएटी जो आपको लमसम मिल जाती है, लेकिन ये टोटल ग्रॉस पेंशन से ही निकलती है। ठीक हो गया। अब कैसे ग्रॉस पेंशन निकालनी है, लास्ट बेसिक पे आपकी, ठीक है जी, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय सर्विस इन सर्विस, टोटल 30 साल सर्विस, इससे 35 साल हो, 34 साल हो, 31 साल हो, टोटल 30 ही गिनी जाएगी, उससे ऊपर नहीं होती। फिर मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। अब ये ध्यान में रखें कि 6 महीने या इससे ज्यादा का पीरियड हो ना सर्विस के अंदर, तो वो पूरा साल काउंट होगा, तो वो उसमें, लेकिन 30 साल से ऊपर नहीं जानी, जो मर्जी हो जाए। अब समझ लें, लास्ट बेसिक पे आपके सर्विस के साल मल्टीप्लाई बाय 7, और इन सब का सम टोटल लेके आपने तकसीम कर देना 300 के ऊपर। अब आते हैं फिर क्या हुआ। अब फर्ज कर लें इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ बर्थ इज ये सारा, अब ये है जनाब इस बंदे की बेसिक पे 30,000 रुपया, जरब उस बंदे की सर्विस 25 साल, मल्टीप्लाई फार्मूले के 7 डिवाइडेड बाय 300, ये पैसा निकला 17,500 रुपया उस बंदे की, जो 100% है वो ग्रॉस पेंशन निकल आई। अब इसमें से ग्रेजुएटी के भी निकलने हैं, इसी में से जनाब नेट पेंशन जो महीने मिलनी वो, यानी ग्रॉस पेंशन ही आपको महीने बाद मिलती, याद रखें, नेट पेंशन मिलती है, क्योंकि उसमें से ग्रेजुएटी निकाल लेते हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये याद रखना ग्रॉस पेंशन 17,500 है,
ग्रॉस पेंशन कितनी आई? 17,500। नेट पेंशन कितनी बनेगी? 65%। वो कैसे निकालनी है? ग्रॉस पेंशन यानी 17,500 ज़रब 65, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब ये जब आपने करना इक्वल टू, ये आपकी निकलेगी नेट पेंशन। सही, ये सॉरी डिवाइडेड है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया है। ग्रॉस पेंशन यानी 17,500 ज़रब 65 तकसीम 100, ये नीचे लिखा हुआ है, चूंकि ऊपर ये गलत हो गया, ये डिवाइडेड बाय होना था। अब नेट पेंशन देखे कैसे निकलने लगी। ग्रॉस पेंशन निकली 17,500 ज़रब 65 तकसीम 100, ये निकले 11,375। इस बंदे को 11,375 पे 17,500 में से 11,375 नेट पेंशन मिलेगी। बाकी जो बचा वो ग्रेजुएटी में जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रेजुएटी कैसे काउंट करनी है। फार्मूला क्या है? ग्रॉस पेंशन ज़रब 35। ये जो ग्रेजुएटी 35 होती है, पेंशन 65% होती है, टोटल ग्रॉस पेंशन बनती है, उस पर पहले 65% निकालते हैं जो आपको हर महीने बाद मिलनी है, 35% निकालते हैं जो आपको लमसम टोटल पैसे मिलने हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें 17,500 ग्रॉस पेंशन थी, ज़रब अब आपने करना है 35 तकसीम करना 100, रकम निकली 6,125 रुपए, ये ग्रेजुएटी की अमाउंट निकल आई। अब आ जाए जी, आपने टोटल ग्रेजुएटी कैसे निकालनी है? एज रेट होता है जी, जैसे यहाँ पे ये जो एज रेट लिखा है ये 54 साल पे है। अब आप जाए ना पेंशन रूल में 1965, ऑनलाइन भी पढ़े हुए हैं, वैसे भी देख लें, नेट पे भी पढ़े हुए हैं, उसमें एज रेट लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे 30 साल की उम्र में बंदा जो है वो रिटायर होगा तो ग्रेजुएटी के लिए रेट क्या होगा, 25 के लिए, 20 के लिए, 40 के लिए, वो सारी उम्रें लिखी हुई हैं, उनके आगे रेट लिखा हुआ है। मैंने ये रेट जो लिया है ना, ये 54 ईयर एज का जो लिया है वो 15.75 लिया है। अब ये पेंशन कैसे निकलनी है? एज रेट यानी ये वाला हर उम्र का दिया हुआ है, उसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा, वो मैंने लिया हुआ 54 ईयर वाला। एज रेट ज़रब 12 ज़रब 6,125 यानी ग्रेजुएटी वाली अमाउंट, ठीक है, तकसीम 100। अब देखें ये आ गया एज रेट, ज़रब 12 ज़रब 6,125, टोटल निकला 11,57,749 रुपए। यानी आपके जो टोटल अमाउंट है ग्रॉस पेंशन की, उसमें से 11,57,749 रुपए इस बंदे को फौरन मिल जाएंगे, और 6,125 रुपए इस बंदे को जनाब हर महीने मिलते रहेंगे। ये है जनाब पेंशन को करने का। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा, और ये रिकॉर्डेड PHEC की वेबसाइट पे भी लगी होगी, वहां भी आप देख सकते हैं। तो ये रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेंशन के लिए लगने हैं, बाकी चीज़ों के लिए लगने हैं। ये सारे आप इनको देख लीजिएगा कि किस पेंशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। फिर आपका GP फंड जितना आपके अकाउंट में पड़ा होता है वो सारे का सारा आपको मिल जाता है जी रिटायरमेंट के बाद। GP फंड इसे कहते हैं। आपने निकाला हुआ है तो वो किस्तें देते रहते हैं, 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र हो जाए तो वो नॉन रिफंडेबल निकालते हैं। 50 साल से पहले आप ले लेते हैं रिटायरमेंट से पहले तो आपकी किस्तों में वापस करने पड़ते हैं, लेकिन 50 साल के बाद नॉन रिफंडेबल है, वो आप निकाल सकते हैं सारे का सारा। अगर आपने नहीं निकाला तो रिटायरमेंट के बाद सारा आप निकाल सकते हैं। फिर ग्रुप इंश्योरेंस मिलती है जो पैसे कटते हैं ग्रेड के हिसाब से मिलती है। ये अभी तक तो जो कानून जा रहा है वो ये है कि बंदा खुदा न खास्ता इन सर्विस डेथ हो तो फिर मिलती है, लेकिन ये केस चल रहा है जैसे कि 1-2 सूबों में हो गया है कि जब बंदा रिटायर हो तो इंश्योरेंस के पैसे भी उसको तभी मिलने चाहिए ताकि वो उनको इस्तेमाल कर ले। ये सारा बेनोवलेंट फंड भी है। फिर बेनोवलेंट फंड डेथ की शक्ल में, और अगर बंदा जिंदा है तो फिर बच्चों की स्कॉलरशिप मिलते हैं। ये रेट वेरी करते रहते हैं। फ्यूनरल ग्रांट मिलती है, खुदा न खास्ता डेथ हो जाए, बेटी की शादी करनी हो उस पर पैसे मिलते हैं। बच्चों के स्कॉलरशिप 90% या उससे ज़्यादा नंबर हो तो 50,000 रुपया मिलता है। लेकिन ये रेट्स चेंज होते रहते हैं, वो आपने बेनोवलेंट फंड को देख लेना। मंथली ग्रांट मिलती है, ठीक है। फ्यूनरल फेयरवेल ग्रांट लास्ट जो बेसिक पे होती है ये बेनोवलेंट फंड से रिटायर होने वाले बंदे को मिलती है। रेट्स ये चेंज होते रहते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस का मैंने बताया लिटिगेशन चल रही है। अब मैं वापस चलूंगा, 15-16 मिनट आपके पास हैं। अब हम चलेंगे क्लासरूम के अंदर। PHEC से मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल कोलीग से जो मौजूद हैं, काइंडली वो माइक खोल दें, और जिस ऑनरेबल कोलीग ने कोई क्वेश्चन करना है इन तीनों पॉलिसीज के हवाले से वो क्वेश्चन कर ले, ताकि और भी अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो वो हो जाए, या फिर ये सारी चीज़ें लग जाएंगी उस पर PHEC की वेबसाइट पे, आप उधर भी देख सकते हैं। इनके डिटेल्ड रूल्स हैं, चूंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 90 मिनट्स होते हैं, ये टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैंने कोशिश की है कि सबको सम अप करने के साथ साथ और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आपको बताई हैं। तो अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है
तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और ऑनरेबल PHEC रिप्रेजेंटेटिव से ये रिक्वेस्ट है, काइंडली टू ओपन अप द माइक्स ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू।